Hello students, once again I Pramod sir welcome you all in math period. So students, in the sixth lesson algebraic expressions and identities, up till now we have seen how to add or subtract the algebraic expressions. Now students, let us see the next topic. I am writing here some algebraic expressions. Let it be 3x square minus 2y, 8y square and 7 plus 4x square minus 2x. Another example, in second one, 5x cube minus 2 minus 10y cube and 3x square minus 8 plus 7x cube. In the third one, let us take minus 5x plus 7 minus 13y and say minus 5x plus 2y minus 3. So students, here you can see in all these three, 1, 2, 1, 2, 1, 2, two terms are there. Of course, these are said to be binomials. Right students? Here 1, 1, 1 means students, these are monomials, and in these expressions 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, of course you say that these are trinomials. Students, all these are said to be also polynomials. You know it. मोनोमियल है उसको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. So in that sense we can say that all these are polynomials. Students, here for these first say in the first monomial, binomial and trinomial, in all you can see the power, highest power, here 2, here 1. What we are saying students? The power or exponent is highest power और एक्सपोनेंट. ओके, 2 है, हाईएस्ट कितना हो गया तो 3 हो गया, क्योंकि y है तो इसका पावर y. जैसे 5 है स्टूडेंट्स, तो इसको हम 5 रेज़ टू पावर 1 बोल सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 1 बोल सकते हैं. ठीक है, तो y है, तो वेरिएबल के जो पावर्स है, हम वेरिएबल के पावर्स देखेंगे यहाँ पर. तो ये वेरिएबल का पावर कितना हो गया? 1 हो गया. यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑटोमेटिकली 2 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2. हियर आल्सो 2, राइट? सो हाईएस्ट पावर इज 2, राइट? इन द ऑल फर्स्ट वन. In all the second one, highest power or
exponent of the variable is कितना है देखेंगे 3 दिख रहा है इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, वाला हाईएस्ट तो 3 है, सो यहाँ पर 3, राइट, एंड हियर इन ऑल दिस 3 यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं लिखा है, 1 1 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 है, तो हाईएस्ट तो 1 ही हो गए, तो हाईएस्ट जो पावर है यहाँ पर है is 1। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, उसको हम बोलते हैं डिग्री 1, या फिर उसको हम फर्स्ट डिग्री बोलते हैं, डिग्री 1 या फर्स्ट डिग्री बोलते हैं। Whenever the power, highest power or the exponent of the variable is 2, तो उसको हम सेकेंड डिग्री बोलते हैं, उसको हम सेकेंड डिग्री बोलते हैं। जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, उसे हम बोलते हैं थर्ड डिग्री या डिग्री 3, third, right? Students, you can see here all these examples are, although they are monomial, binomial or trinomial, no matter, but the degree is 1. In the similar way, all the examples, in the first one you can see the degree is 2 or second degree, and in the examples here you can see the third degree or the degree is 3. So from these examples we can conclude that the term with the highest power of the highest power, the term with the highest power of the polynomial decides the degree of the polynomial. इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? That highest power decides the degree of the polynomial. So students, अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा what is the degree of this algebraic expression, highest power देखोगे और degree लिख दोगे 2, the degree of the given polynomial is 2, like that. Now students, the question arises that if such expression is there like this, focus here, where in multiplication more than one variable is used. Here only one variable was there. In multiplication I am saying, यहाँ पर एक ही था, यहाँ पर y है, मगर अलग अलग। इसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन में ही 2 वेरिएबल दिए। अगर ऐसे algebraic expression की, of course it's a trinomial, polynomial, अगर मैं पूछता हूँ कि डिग्री क्या है, उस वक्त मगर थोड़ा सा हमको कॉशियस रहना पड़ेगा। इन सच एग्जाम्पल्स व्हाट वी डू, यहाँ पर x⁴ है, तो डिग्री तो हमको लगता है कि डिग्री इसकी 4 हो जाएगी, बट इट इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि यहाँ पर इसका जो पावर है x का 2 है, एक ही साथ में मल्टीप्लिकेशन, और y वेरिएबल का पावर है 3, तो उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, पावर का मगर एडिशन करना पड़ता है।
exponents if there will be more than one variable in multiplication form. यहाँ पर multiplication 3x square into y cube, ऐसा इसका मीनिंग होता है 3x square y cube. ओके, यहाँ पर यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे इसके बाद में माइनस है, नो मैटर. तो यहाँ पर ये जो पावर्स है उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड. तो ये कितना हो गया 5. अब इनका जो हाईएस्ट, ये पूरे पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर तो 5 आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 + 3 कितना आएगा 5. 5 सबसे बड़ा रहेगा, 4 तो रहने वाला है नहीं. सो इस एक्सप्रेशन की डिग्री हमको कितनी लिखनी पड़ेगी, 5. यानी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 5th डिग्री का है. इट्स डिग्री इज 5, नॉट 4. 5 square. Students, if I am going to change this now, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर y और बाद में 7x लाइक दैट. तो यहाँ पर भी x इंटू y है अभी, मगर यहाँ पर y का पावर ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 1. तो वो 4 + 1 हो जाएगा, पावर 4 + 1. तो वो भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है. 4 + 1 कितना आ रहा है, वो भी 5 आ रहा है, राइट. तो दोनों भी सेम है. तो हियर ऐसे एक्सप्रेशन की डिग्री दोनों सेम. जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तो यहाँ इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है. ऑफ कोर्स हाईएस्ट फर्स्ट ही हो गया. इसका भी पावर यानी हाईएस्ट पावर 5 आ रहा है, बिकॉज 2 + 3 5, और इसका 4 + 1 5 आ रहा है. तो इस वक्त भी डिग्री कितनी रहेगी, 5 रहेगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वन मोर थिंग. स्टूडेंट्स, जस्ट फोकस ऑन दिस. यहाँ पर मैंने 3x square - 8 + 7x³ लिखा है. जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसका हाईएस्ट पावर होता है उससे कभी भी लिखा जाता है. जनरली आई एम सेइंग, जनरली यूजुअली पॉलिनोमियल्स आर रिटन विद द डिसेंडिंग ऑर्डर. ऑफ पावर. उनसे इसमें लिखा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स में लिखा जाता है जनरली. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे हाईएस्ट पावर वाला ये है +7x³. तो इसको 7x³ प्लस में लिखेंगे तो चलेगा. 3 के बाद में हाईएस्ट पावर के बाद में ये 2 वाला है, तो ये प्लस है, +3x², और सबसे आखिर में -7. ऑफ कोर्स इट्स अ ट्राइनोमियल एंड इट्स डिग्री इज 3. तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में जनरली या यूजुअली लिखा जाता है पॉलिनोमियल्स को. ये भी ध्यान रखना पड़ेगा. इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं. ऑलरेडी 1 है, इसका भी 1 है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है. इसमें इसको मगर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 7 + 4x² - 2x है. तो यूजुअली कैसे लिखा जाता है इस पॉलिनोमियल को, 4x² - 2x + 7. So I hope you understood all these things. Okay. Now students, if we have to find the value of one of the example when its variable's value is given, look here, what I have written, find the value of given expression. तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा है, 10x² + 20x - 40. Okay. And what we have given, the value of the variable x. Of course you can see the variable in the expression is x, and now what we have to do, if the value of the variable x is 3, means x equals to 3, we have to find the value of the expression, this expression, right, given expression. So students, what I would like to write here, the expression
You can see I have written, right? Now instead of x, ये जो x है वेरिएबल, उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा. सो 10x स्क्वायर है, मीन्स 10 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह क्या लिखूंगा मैं? 3 लिखूंगा. x की जगह क्या लिखूंगा? 3, और उसका क्या है? स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, राइट? प्लस 20x है, प्लस 20 इंटू एक्स. 20x मीन्स 20 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 40, राइट? आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस. मैंने x की जगह सिर्फ कितना लिखा है? यू कैन सी 3 लिखा है, बाकी ये जो स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लिखा, ठीक? नाउ स्टूडेंट्स 10 इंटू 3 स्क्वायर, इसका मतलब होता है 3 इंटू 3. आपको पता है 3 स्क्वायर है तो 3 इंटू 2 नहीं होता है, 3 इंटू 2 नहीं होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता. इट इज रॉन्ग. 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 3. ओके, एज इट इज मैं लिख देता हूँ, बाद में एक साथ चुराएंगे, माइनस 40. नाउ स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड. ओके, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 10 90. ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 90. तो ये अल्टीमेटली 90 आएगा. प्लस 20 इंटू 3 60 माइनस 40. So what will we get? 90 plus 60 150, 150 minus 40 is 110. Of course students, this 110 is the value of this expression when the value of variable x is 3. So it's all about finding the value of the given expression. You can see students, I have drawn a rectangle here with length 5 and breadth 2, right? If I have to find the perimeter students, अगर arithmetic में मैं जाऊँगा, ये 5 तो ये 5 रहेगा, ये 2 तो ये 2 रहेगा. अगर the sum of all sides means perimeter, so what can I do? 5 plus 2 plus 5 plus 2. और इसको अगर मैं छोड़ाता हूँ तो I will get 5 plus 2 7 plus 5 12 plus 2 40, of course. But you know students, इस arithmetic को अगर हम compress करते हैं, then what we derive? If suppose instead of using this arithmetic, ये L है, ये B है, length and breadth, right? So L plus B plus L plus B आ जाएगा. And if student I will add this L plus L, 2L plus 2B means equals to 2 in bracket length plus breadth. इसको हम बोलेंगे perimeter of the rectangle. 2L plus 2B means 2 in bracket L plus B. In earlier class also I discussed regarding this with you. Such compressed format, perimeter of rectangle is nothing but 2 into length plus breadth. This compressed format of arithmetic is nothing but the formula. I hope you got it now. Okay, it's the formula. We say that it's the formula. And with the application of such formula, अगर कुछ भी algebraic expression length अगर देकर रहता है या breadth देकर रहता है, then we can use this formula and very easily and with minimum step we can find its perimeter, regarding which in earlier exercise 6D I means already taught you, right? So students, in next part now, let us start exercise C 6E now. So students, the very first question is, write the degree of the following polynomials. So students, you can see in the table A, B, C, D, E, these polynomials, 5 polynomials are given, and what we have to do? We have to find the degree. It's very easy question, no matter. I explained it already. You can see students, the highest power 2, 4, 1, इसका तो 0 रहता है, ये तो 4. So highest power is 4.
हियर 6 है, ये 3 है, इसका 1 और 7. स्टूडेंट्स बी केयरफुल. आई टोल्ड यू x मीन्स x रेज़ टू पावर 1 इनटू है y रेज़ टू पावर 7. 1 प्लस 7 कितना आएगा? 8. 8 सबसे ज़्यादा, ये 6 छोटा है. सो हाईएस्ट पावर is 8 and that is why the degree of this polynomial is 8. यहाँ पर और कॉशियस रहना है. देखो मल्टीप्लिकेशन, ये मैं पहले वेरिएबल लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स. यू कैन सी आई हैव रिटन ओनली वेरिएबल पार्ट विच इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जो 4 को छोड़ो. तो स्टूडेंट्स इसमें 4x² y z³ है, इसमें 2 ये 1 यानी 2 प्लस 1 y है तो y रेज़ टू पावर 1. 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 ये 6 आ गया. ये कितना आया? 6. ओके. इसका देखो स्टूडेंट्स x³ y² है. x³ y², तो ये 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा. ओके. और इसमें x³ भी है तो हाईएस्ट 6 है. यू कैन सी. सो द डिग्री इज 6. हियर 4x प्लस 3y प्लस z इन ऑल 1 is the highest power. x and x raised to power 1, y raised to power 1, z and z raised to power 1. तो 1 ही है, वो भी सेपरेट सेपरेट है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है. सो द डिग्री इज 1. नाउ द डिग्री ऑफ 7. It's very interesting. So let us see students. All these are polynomials. Of course, all these are polynomials. It is also polynomial. In earlier class, I explained that if 7 is there, 7 is nothing but 7 x raised to power 0, because x raised to power 0 is 1 if x is not equals to 0. That is the condition actually. So x raised to power 0 का मतलब होता है 1. तो हम स्टूडेंट्स 7 को 7 into 1 लिख सकते हैं. 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 into 1. और 1 को क्या लिख सकते हैं? x raised to power 0. इसका मतलब 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 into x raised to power 0. अगर वेरिएबल उसमें डालना ही है तो. और डिग्री इज रिलेटेड टू द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को हम डिग्री बोलते हैं स्टूडेंट्स. सो यहाँ पर 7 तो कांस्टेंट है. 7 का मतलब 7 x रेज़ टू पावर 0 है. तो हमको 7 की डिग्री थोड़ी देखनी है, पावर थोड़ी देखना है, हमको तो वेरिएबल का पावर देखना है. तो इसकी डिग्री आएगी 0. दैट मीन्स स्टूडेंट्स एक्सेप्ट 0. 0 छोड़ दो. 0 इस कांस्टेंट की डिग्री ही नहीं होती है, क्योंकि 0 0 इंटू x रेज़ टू पावर 1000 भी लिखा हो तो भी चलेगा, क्योंकि इसका मतलब तो 0 आएगा. तो इसकी डिग्री 1000 की हो गई. कोई बोलेगा 100 हो गई, कोई बोलेगा 0 लिखो सर, ऐसा भी बोल सकते हैं. 0 y. तो इसकी नॉट डिफाइंड. ये जो 0 है, 0 इस कांस्टेंट की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड, उसको हम बता नहीं सकते. बट 0 को छोड़ के जितने भी कांस्टेंट्स रहेंगे लाइक 7, 8, -10, इन सभी की डिग्री 0 आती है. इन सभी की डिग्री कितनी आती है स्टूडेंट्स? 0. Okay students, I hope you understood all the concepts up till now, and I think you will focus on such examples how to find out the degree. Okay, bye students, have a nice time.